इंटरनेशनल पेपर किस तरह का आता है, मॉडल टेस्ट गोएथे इंस्टीट्यूट का है ये पेपर. सो लीजन टेस्ट hat drei Teile, it has 3 parts. लीजन जी कुछ से ब्रीफ है, आपको शॉर्ट ये पढ़ने हैं. अनसाइगन एटसेट्रा, कभी कोई एडवर्टीजमेंट होगा, कभी कोई लेटर होगा. Zu jedem Text gibt es Aufgaben. एवरी टेक्स्ट के साथ में कुछ Aufgaben है, रीड करके उसका आंसर करना है. Kreuzen Sie die richtige Lösung an, आपको राइट वन को क्रॉस करना है. रिश्टिश फाल्स, जो भी सही है उसको क्रॉस कर देंगे. सो लीबर पेटर, पेटर को लिखा गया पहला वाला. लीबर पेटर, der Zug hat Verspätung. Bin erst um 3 in Köln. Gehen wir heute Abend essen? Ruf an. Zwischen 5 und 6 bin ich aber bei Natascha. Liebe Grüße, Silke. Silke ने लिखा पेटर को. So, Silke kommt um 15 Uhr an. Richtig oder falsch? False, sir. 5 und 6, between 5 and 6. Okay. 15 Uhr का मतलब 3 o'clock. 3 o'clock. ओके. और यहाँ इसने पीटर को लिखा डेर Zug hat Verspätung, कि ट्रेन थोड़ी लेट है आज. बिन erst um 3 in Köln, मैं तो 3 बजे तक पहुंचूंगी. Gehen wir heute Abend essen? Zwischen 5 und 6 bin ich aber bei Natascha. So Peter Joel, also das kann richtig sein. 3 बजे तक पहुंचूंगी, तो 15 बजे का मतलब भी 3 बजे ही है. थोड़ा सा फंसा दिया इन्होंने. पेटर जोल जी zwischen 17 und 18 Uhr anrufen. पेटर उसको बिटवीन 17 और 18 के बीच में कॉल करना चाहिए. क्या? False, because it is 5 und 6. जो 5 und 6 का मतलब ही है 17 और 18. But nowhere it is written in the evening, no sir. It's not written, but between 5 and 6. So ट्रेन में आ रही है 3 बजे, तो रात की बात नहीं है ये. Okay. या उस तरीके से दोनों का ही उसने उसी तरीके से लिया है. बट फिर भी ये फॉल्स होना चाहिए. हाँ. क्यों? क्योंकि वो कह रही है कि zwischen 5 und 6 bin ich bei Natascha, कि भाई इस टाइम के बीच में तो मैं वहां हूं, मतलब वो बिजी है. सो बिटवीन दिस टाइम. क्लियर? So, dann nochmals. Liebe Pia, dear Pia, lieber Holger, den Umzug haben wir endlich hinter uns. Finally, Umzug is done. Okay. Es war ziemlich anstrengend. It was really very tiring, anstrengend. Michelle hat noch immer Rückenschmerzen. Still back pain. Wir hatten mehr als 75 Umzugskartons. Unsere Wohnung ist jetzt in der 3. Etage, hat 92 Quadratmeter. Die Zimmer sind sehr hell. Wir haben jetzt auch ein großes Arbeitszimmer mit viel Platz und unsere Bücher. Leider haben wir keinen Balkon und die Küche hat nur 7,5 Quadratmeter. Kommt doch mal zum Essen. Habt ihr am Abend, Samstagabend Zeit? Dann könnt ihr euch die Wohnung ansehen. Viele Grüße, Karin und Michelle. इन्होंने लिखा है उन दोनों को. ओके. So Pia und Holger sind umgezogen. Umgezogen is what? Umziehen is moved. घर शिफ्ट कर लिया है. Richtig oder falsch? Richtig. Ja?
Alle sagen richtig? Sir, but they are writing to Pia and Holger. So then It is false. false. Yes, because Karin और मिशाइल ने किया है. Correct. Right? So thus is done false. They are writing to them and they are saying we have shifted. So thus is done false. Das Wohnzimmer ist leider nicht so hell. Living room is not so False. bright. False. Was hat man hier geschrieben? क्या लिखा है इसमें लिविंग रूम के बारे में? One list is in there. It's there in third floor and it is 92 square meter. Die Zimmer sind There hell. hell. So, but are they talking about one Zimmer or just Zimmer? So the Wohnzimmer के बारे में कुछ अलग से आया है क्या? हाँ. नहीं यार. नहीं आया? तो this So room is also right. included. ना? हाँ sir. So nicht so hell. Richtig oder false? Richtig. Richtig. Das ist false dann. Wahr. ऊपर लिखा है ना the Zimmer sind sehr hell कि सारे रूम्स जो हैं वो एकदम ब्राइट मतलब फुल ऑफ लाइट और यहाँ लिखा है कि Wohnzimmer ist Sir. Okay, false. आपने निश्च मिस हो गया. हाँ तो ये मिस नहीं होना है मिस गड़बड़ हो जाएगा. सो निस जो हेल डेर बालकोन इस्ट नूर क्लाइन बालकनी तो छोटी है भाई छोटी है क्या? No sir, they don't have balcony. हाँ They don't have balcony. ओके Keinen Balcony. या keinen Balkon. So das ist dann auch false. False. Ja Auch. auch मतलब also. This is also false. Then. Ja. Jetzt lesen Sie Texte und Aufgaben. Again you read text and then find answer. Lesen Sie Texte und Aufgaben. Wo finden Sie Informationen? Where you will find this information. Sie möchten Polnisch lernen. Polish language सीखनी है. वो finden Sie Information Polnisch के लिए. Sir, क्या करना है? We have to match the following or Here information is given. So Sie möchten Polnisch lernen means you want to learn Polish language. So to learn Polish language, this is better option or this is the right option? Which one is right option? Sir, left one is a better option because Polnish Unterricht class is there. Yes, right. And here, Project. yes, here they are talking about communication, rise info, media, but here Polnish Unterricht and we want to learn Polnish. So das ist dann richtig. Polish class. Correct. Klar? So it's written clear cut. So das ist dann die Antwort. So A is the Antwort here. Which one is the right answer? This one is the right answer. Sie suchen einen neuen. Ja bitte? Unterricht मतलब class. Class. Unterricht class. Yes. The problem can answer. Question is only I'm not understanding. Since you are telling, I can track what you are asking. I can answer. But then question, if I read by myself, I'm not able to get what it is. Aha. Same here. या सो जी मिशन दन दी व्यूटर. ये जो भी वर्ड्स इसमें आ रहे हैं एक्चुअली ज़्यादातर वर्ड की पॉसिबिलिटी है कि वो कोर्स में आए होंगे. हो सकता है कुछ ना भी आए हों, राइट, बट ज़्यादातर की पॉसिबिलिटी है कि वो ऑलरेडी कोर्स में कवर हुए हैं. तो हम ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो है. तो वही फॉर एग्जाम्पल 7th, Sie suchen einen neuen Kleiderschrank. You are searching a new Kleiderschrank. Kleiderschrank मतलब Kitchen का Cloth kitchen. Cloth wardrobe. wardrobe. या राइट. यू आर सर्चिंग दिस. वो finden Sie Information. क्लोथ्स वार्डरोब के लिए कहाँ मिलेगी इंफॉर्मेशन? Die Wohnwelt, Ihr Partner für Möbel oder Badezimmer, Möbelprogramm. Right one, sir. Badezimmer Badezimmer. Global program. Okay, read. Have you gone through all? Okay, wait. Because the offer is there on
bedroom furniture or something. Last line. The Aha. Angebot Mhm. are part mobile and 4. Okay. Links, sir. Because weiter Information über Schlafzimmer and Kleiderschrank would be there in the Schlafzimmer. Okay. Kleider Schrank. Okay, this is bathroom. Yes, sir. Yes, sir. ओके सो दी वॉन वेल्ट ईयर पार्टनर फिर मोबाइल आपको फर्नीचर चाहिए तो यहाँ आइए वाइटरे इंफॉर्मेशन स्लाप सिमर वॉन सिमर आर्बाइट सिमर किंडर सिमर सबसे रिलेटेड आपको फर्नीचर यहाँ मिलेगा तो सब चीज़ों से रिलेटेड फर्नीचर मिलेगा और यहाँ पे बाडेट सिमर बाथरूम से रिलेटेड सो auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen das Angebot Badmöbeln ये केवल बाथरूम से रिलेटेड है और वहां पे स्लाप सिमर वोन सिमर आर्बाइट सिमर किंडर सिमर ठीक है करेक्ट बाथरूम में थोड़ी ना Kleiderschrank होता है ja so dann das kann es sein hier Sie möchten in Österreich auf der Donau eine Schiffreise machen Donau क्या है It's a place. Yeah, place, a river. Donau is a river in Germany. Out there Donau. So, Sie möchten in Österreich, Austria में आपको ship journey करनी है. Wo bekommen Sie Informationen? Where you can find the information? Right one, sir. Yeah. Andre, Since generation has fantasy for this river. Yeah. No. British. We have modern ships. Yeah. Okay. Rest- Something related to ship. Correct. And flows in the river you can experience Every day. every day. So this is actually the right answer. B. Then here G must. Yeah, bitte. You want to say something? Genau, sir, exactly. Ja, gut. Und dann hier, Sie möchten im Schwarzwald arbeiten. Wo finden Sie Informationen? Schwarzwald में Sir, what? Right one. left में नहीं दिख रहा है सर. Sir, right one. अभी दिख रहा है? Black wall it is, sir. Walled is Wald is jungle, Schwarzwald. jungle. Okay, Black forest. Black forest. Yes. Black forest. So you want to work there. Which one is the right? Links. The roofs. Links. The roofs fell down. Okay. You say this one? Yeah. Left. Arbeit. Arbeiten Schwarzwald. Right, because here tips und infos für Arbeiten im Schwarzwald, working related information. Here means as a Nature. tourist, nature you want to enjoy. So as a nature destination, Freizeit Angebot है Ferien. for job. Ferien भी है. Yeah, Free Ferien. time. Holiday. It offers Yeah, culture. this is free time offer means holiday as a tourist you can, and here you want to work. So Sie möchten einen Kletterkurs für Anfänger machen. Sie können aber nur nachmittags पहाड़ पे चढ़ना है क्लेटर कोर्स बट आफ्टरनून में आप कर सकते हो. वो rufen Sie an? Left one, sir. Left one. Right is SN food. Okay. Genau. So Sport und Kletter Club. Kletter Club. Das ist dann. Hier ist das Alpenclub Essen. Hier ist etwas mit Essen zu tun. Das hat mit Essen zu tun. Ja, richtig. Hier. Lesen Sie, now the third portion. Lesen Sie die Texte und Aufgaben. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. An einer Arzttour. मतलब एक डॉक्टर के गेट पे ये सब लिखा हुआ है. Now, according to this information, you have to answer them. See the information first. Montag, Dienstag, Mittwoch. Es ist Mittwoch Vormittag.
या आज मिटवॉक, आज भी मिटवॉक ही है, अरे वाह, या मतलब आज ही के दिन जी क्योनन बाई डॉक्टर स्टेफन्स jetzt einen Termin bekommen. Richtig. Vormittag. Four is before. Pulse. False. Because Mittag he comes from 3 o'clock to 6 o'clock. Vormittag is like before. Before 12. That's right. Before 12. And here it is after 3 available. So that is false. Yes. So Nachmittag only. So they are saying that you can meet now. No, that is false. False. Im S-Bahnhof. S-Bahnhof. Okay. Station पे हो आप. Die S-Bahnlinie S1 fährt heute nur zum Hauptbahnhof. Zur Weiterfahrt nach Griesheim nehmen Sie bitte die S2. So, heute fahren die S-Bahnen nur bis zum Hauptbahnhof. Nur, only. False sir, because next line में भी कुछ बोल रहा है वो. देखो S1 Fahrrad आज only 2 Hauptbahnhof 2 Meter Fahrrad nach Griechen take so take instead S2 heute this सो यहां पे लिखा है आज एस बानन जो है वो केवल हाउटबानहोफ तक ही जाएंगी. रिश्टिश और फॉल्स. सर क्योंकि S1 की बात की S1 जाएगी और S2 की अलग की है, तो ये पूरे S की बात कर रहा है. तो फॉल्स. यस, दिस इज फॉल्स. ये पूरे एस की बात कर रहा है और ये कह रहा है S1 जाएगी वहां तक, आगे S2 ले लो, तो फॉल्स है. ओके. पूरी है कि ये ब्रेड है? ओके ओके, ब्रेड है. या अनडेट्यूअर बेकराई, बेकरी के यहाँ पे गेट पे लिखा है wir sind umgezogen. Die Bäckerei Blank finden Sie ab sofort in der Herrenberger Straße 22. So, heute können Sie Brot und Brötchen in der Herrenberger Straße 22 kaufen. Richtig. रिश्टिश हर्ष. रिश्टिश बिकॉज अब जोफोर्ट बोल दिया कि ये हम लोग मूव कर गए हैं और अब से इमीडिएटली यहाँ पे अवेलेबल है हम लोग, और ये कह रहा है कि अभी जी क्यों अभी खरीद सकते हो. सो रिश्टिश नाउ दे आर अवेलेबल देयर. सो रिश्टिश या Eingang von einem Geschäft. Eingang का मतलब एंट्री, जहाँ पे एंट्री करते हो आप वहां पे लिखा हुआ है ये Wir kaufen, verkaufen und reparieren alte Möbel. Ihr Tisch ist kaputt. Sie können ihn in das Geschäft bringen. False. वो डिश वो ये पर यहाँ पर मोबाइल है. So richtig oder false? False. What is Möbel? Furniture. Okay, Richtig. And Tisch means डिश. chair. Oh, sorry. Richtig. Oh, right. So Tisch is also furniture ना. So your Tisch is kaputt. आपकी टेबल, आपकी चेयर खराब है तो यहाँ ला सकते हो क्या? बिल्कुल आ सकते हैं. या जो रिपेरियर. मोबाइल देखा तो या मोबाइल याद है. Möbel means furniture. And dish. I get confused. मैं एक्चुअली टाश और टिश हाँ, हो गई और मोबाइल में भी हो गई. दोनों जगह होना नहीं है लेकिन. ओके. सो देन लास्ट इंडियन Geschäft is what? बिजनेस हाउस, दुकान, शॉप, किसी भी चीज के लिए गेशाफ्ट यूज कर सकते हैं. या Geschäft. ओके. नेक्स्ट
सर पूरा लेसन ऐसे रिश्ते पास ही रहेगा सर। कितनी अच्छी बात है ना, राइट गंदी बात है सर। राइट, हाँ ऐसे ही रहने वाला है। सो इन देयर स्प्राकशूले, स्प्राकशूले मीन्स लैंग्वेज स्कूल, राइट। पासिंग मार्क क्या है सर? हाँ पासिंग मार्क क्या है? उतने हैं जितने आपको आएंगे, उससे ज्यादा ही आएंगे। सर एक बात बताओ, ये इंडिया से 2 या जर्मनी से 2 सब जगह एक जैसा पेपर आता है या यहाँ टफ आता है? कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप फेल होते हैं ना तो ये समझ लो आपका टीचर फेल हो रहा है। स्टैंडर्ड सब नहीं जगह सर। सेम रहता है, सब जगह स्टैंडर्ड सेम रहता है, मेरे को ऐसे लगता है। यस एक्चुअली खुद प्रिपेयर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फेल हो जाएगा। टीचर क्यों फेल होगा? तो क्यों blame आप तो करें? हाँ सर, नहीं, we have not made any effort, we will fail. नो जस्ट गो थ्रू कुछ पेपर्स वगैरह, कुछ अपना जो पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे ढंग से, वो वोकैब करोगे तो पक्का। लिसनिंग भी आपको करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, वापस से एक बार सुनना है जो भी करा है, फिर तो हो जाएगा। बिल्कुल आप जो भी बताए हो, everything seems to be related and everything seems to be coming together now. या सारा concepts एक जगह खिचड़ी पक रही है। हाँ ऑफ कोर्स। So das Exkursionprogramm für den Kurs Deutsch 2 am 8.10. Okay, so das Abfahrt Hauptbahnhof Tübingen, Ankunft Hauptbahnhof Heidelberg, dann von 10 bis 14 Uhr Stadtbesichtigung, Universität Heidelberger Schloss und so weiter. Dann frei hier 15 bis 19 Uhr Stadtbummel, Einkaufen in der False. Hauptstraße. Die Teilnehmer können mittags einkaufen gehen. Richtig oder falsch? False. क्योंकि वो मिड टास्क भी नहीं जा रही सर, 3 o'clock के बाद जा रही है। Yes. So das ist falsch dann. Because Einkaufen का टाइम तो शाम को है ना, फ्राई तो तब है, और ये लिखा है मिटाक्स, दोपहर में ही चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फॉल्स। The teilnehmer is what? पार्टिसिपेंट्स, आप लोग कोर्स टाइलनेमर हो, पार्टिसिपेंट मैं हूं कोर्स लाइटर। अब फार्ट का मतलब डिपार्चर है, अनकुंफ्ट का मतलब अराइवल है यहाँ हाइडलबर्ग में, ट्यूबिंगन से जा रहे हैं, हाइडलबर्ग आ रहे हैं, और यहाँ पे फिर ये सब घूमने वाले हैं। स्टार्ट बिजिस्टिगुंग का मतलब है सिटी भ्रमण करेंगे, वो सिटी में यूनिवर्सिटी वगैरह स्लॉस वगैरह देखेंगे, एंड देन शाम को आइनकाउफन इन देयर हाउप्टस्ट्रासे, मेन स्ट्रीट जो है उनकी। सो das war alles, ये हो गया लेजन। नाउ श्राइबन, श्राइबन में देखो 2 पार्ट हैं, दीज आर टेस्ट हार्ट स्वाइट है। कितने क्वेश्चंस रहते हैं 15 लेसन में? 15 अच्छा 15। एंड श्राइबन में 2 मतलब ये 2 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट वाला ये है, ध्यान से देखना, ये पढ़ना, इसको ध्यान से पढ़ने से ये पहला तो फॉर्म फिल करना होता है, मतलब किसी की आप हेल्प करते हो फॉर्म फिल करने में, बिकॉज नया बंदा जर्मन उसको आती नहीं, खुद का फॉर्म फिल नहीं करना आता, दूसरे का क्या फिल करेंगे? हम अपने लिए फॉर्म फिल करते हैं। नहीं आप किसी और की मदद कर रहे हो, जिसकी कर रहे हो उसको तो कुछ नहीं आता, आप कर रहे हो उसका फॉर्म फिल, वो पंगा ले रहा है आपसे करवा रहे हैं। देखते हैं कर पा रहे हैं कि नहीं हम लोग। ईरे फ्रेंडिन आपकी जो यित्का स्टानकोवा स्प्रिस्ट काइन डॉइच, उसको तो जर्मनी नहीं आती और आपको आ गई, राइट। जी म्योस्टन आइनन डॉइच कोर्स आन देर फॉकहोकशूले मखन, वो जो है यित्का, वो एक जर्मन कोर्स करना चाहती है, कौन सा? स्टूफा A1.1। तो जर्मनी में क्या है कि A1.1 और A1.2 ऐसे कराते हैं, तो वो A1.1 में पार्ट लेना चाहती है। जी वॉन्ट, यित्का वॉन्ट jetzt in Hannover in der Lutherstraße 63. Die Postleitzahl ist 30171. Im Kursprogramm finden Sie einen Kurs für Sie. उसके लिए आपको एक कोर्स दिख गया, आपको फिल करना है। In dem Anmeldeformular fehlen 5 Informationen, 5 इंफॉर्मेशन मिसिंग है जो आपको फिल करनी है। Helfen Sie
Ihrer Freundin, आपकी फ्रेंड की हेल्प करो, und dann schreiben Sie 5 fehlende Informationen. ये 5 इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग है जो आपको लिखनी है. क्या क्या मिसिंग है भाई इंफॉर्मेशन? इटका, स्टेनकोवा इटका. सो यहाँ पे एक ओके इटका आ जाएगा ना. ओके एंड देन हाउस नंबर स्ट्रासे नहीं लिखेंगे. स्ट्रासे तो लिखा हुआ है ना, स्ट्रास है, शॉर्ट में लिखा हुआ है. Last ist 3, 0, 1, 6, 7, 1. Okay. Then fourth information. Kurs der Stufe. Okay. Stufe A1, A1 und 1. Stufe A1.1. ओके. कुछ नंबर और बताना है अभी तो. कुछ नंबर 4, 0, 1, 7, hyphen, das hier. 1, 7. Das meinen Sie? So, ये 5 इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, तो इसी में दी होती है तो आपको मिल जाती है वो. ओके. हमने तो फॉर्म फिल कर दिया सर, 5 मार्क आ गए. हाँ आगे. ओके या यही क्वेश्चन में आता ऐसे ही आएगा. डोंट वरी. Sie sind krank. आप बीमार हो. Sie können nicht nach Frankfurt zu einem Termin mit Herrn Bauer kommen. Schreiben Sie Herr Bauer. आपको 2 चीज लिखनी है. Entschuldigung und Vorschlag. Neuen Termin. Ich bin krank. Entschuldigung, ich bin krank. Okay. Ich habe Rückenschmerzen. Ich möchte einen Termin. Ja. Ich gehe nicht, ich komme nicht für die Termin. Okay. Ich brauche neuen Termin. बस इतना ही लिखना होता है A1 में. बस. हाँ हो गया. पूरा लेटर नहीं लिखना होता, पूरा तो A2 से स्टार्ट होता है. इसमें तो आपको ये 2 पॉइंट दिए हैं, इसमें लिखना है, और इसके भी स्टार्टिंग और अंत वो खुद ही कर चुके. सो एंशुल्डिगुंग इसमें था कि सॉरी बोलो एक तो, और नया अपॉइंटमेंट मांगो, तो आपने बोल दिया एंशुल्डिगुंग, एक्सक्यूज मी, माफ कर दीजिएगा, इश बिन क्रांक, इश habe Rückenschmerzen. आपने बता भी दिया कि मेरे भाई कमर में दर्द है. इश ब्राउक है बिटे einen, बिटे जरूर करो, या einen neuen Termin, या सर आप मॉइस्टे नहीं कर सकते. म्योस्टे कर सकते हैं. इश ब्राउक है थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट है ना, पोलाइट हो जाएगा म्योस्टे, दैट वुड बी बेटर. इश म्योस्टे बिटे einen neuen Termin. वेरी गुड. ब्राउक है भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन म्योस्टे थोड़ा और पोलाइट होगा, क्योंकि जहां पे ये लिखा हुआ है, देखो हेयर लिखा हुआ है, इसका मतलब रेस्पेक्टेड पर्सन है, सो थोड़ा पोलाइटली बोले तो बेटर है. इश म्योस्टे बिटे einen neuen Termin. Danke im Voraus. Danke im Voraus, और एक्स्ट्रा लिख दो अपने थैंक यू इन एडवांस. Danke im Voraus का मतलब है थैंक यू इन एडवांस. और Entschuldigung जब आप लिखते हो
तो आप कोशिश किया करो कि कोमा के बाद में जो स्टार्ट होता है ना वहां पे स्मॉल लिखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग जब करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल लेटर से करते हैं कोमा के बाद, और फिर नया जो सेंटेंस होगा वो तो ये तो वही चल रहा है, और नया सेंटेंस होगा तो यहाँ पे ये कैपिटल लिखेंगे नया, ठीक है। जो सो ये श्राइबन भी ओवर हो गया। अब स्प्रेशन टाइल में सर या फोर्स लाख क्या है? फोर्स लाख का मतलब है आप उनको सजेस्ट करो कि नया अपॉइंटमेंट। आप ये भी कह सकते हो उनको कि क्योंन वीर मॉर्गन उमाख्त ट्रेफन, क्योंन वीर बिटे मॉर्गन ट्रेफन, ऐसे आप सजेस्ट कर सकते हो। हाँ, इस म्योस्टे बिटे einen neuen Termin, और उसके आगे आप ये भी लिख सकते हो मॉर्गन उमद्राई क्वेश्चन मार्क डंक है। फिर आपकी तरफ से सजेशन भी हो गया। वैसे आपने वहां लिख दिया कि आई वुड लाइक टू हैव ए न्यू अपॉइंटमेंट, और आप सजेशन दे दो तो ड्राई ओवर गेट एस मॉर्गन फ्यूमसन ओवर, ऐसे कर दिया तो आपने सजेशन भी दिया और पूछ भी लिया, थोपा नहीं, समझ रहे हो? ऐसे सो ये और लिख दोगे तो बेटर है ना। और वो उसी के साथ मॉर्गन, उसी के साथ इतना भी लिख दो मॉर्गन ओवर, तो भी वो सजेशन हो गया। गेट है इसका मतलब है कल इतनी बजे चलेगा क्या, मतलब आपको जम रहा है क्या। स्प्रेशन, और स्प्रेशन में 3 टाइल है। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन फिक्स है, और इंट्रोडक्शन भी इसी सीक्वेंस में आपको बोलना है। सो बेटे स्टेलन जी जिस 4 1 by 1 everyone will say something, your introduction। ये श्राइबन हो गया? हाँ हो गया, 2 ही चीज थी। अच्छा हाँ, A1 में इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं वो। वाइट टाइल? यस, ओनली 2 श्वाई। Okay. 1 by 1 everyone will say now। Vikram, British on, Stellen is 4। Ich heiße Vikram Ganapati. Ich bin 42 Jahre alt. Ich komme aus India. Ich wohne in Frankfurt. Ich spreche Telugu, Hindi, ein bisschen Tamil, ein bisschen Marathi, ein bisschen Kannada und ein bisschen Deutsch. Und sehr gut Hindi, na? Sir, Ja. ja. Und ich beruf bei IBM. Ich arbeite bei, Beruf bei die, ich arbeite bei. Oh, sorry. Ich arbeite bei IBM as Freizeit. position क्या है? Sorry. Preposition? नहीं, as Als, क्या बोलते als, हैं? als, als. Als, als SAP Berater. Als as test automation lead. Okay. Okay. Test automation lead. Und Freizeit. Freizeit. Was machst du in der Freizeit? Ich Hobbys,
Hobbies, meine Hobbys. Meine Hobbys ist Kochen und Wandern. Okay. Kochen und Wandern. If there are two, then meine Hobbys sind. Okay. If there are two. Yeah. Next, Farjon. Yes. Ja, bitte. Ich bin Dipali. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Jaipur. Ich spreche Hindi, Englisch und Deutsch. Ich bin Studentin. Meine Hobbys sind Musik hören und Zeitung lesen. Okay. Ich spreche नहीं, ich spreche. Spreche. Sprache तो लैंग्वेज होगी. Ich spreche. Okay. Und Hobbys sind, was hast du gesagt? Musik hören und Zeitung lesen. Okay, perfect. Next, Farjon. Mein Name ist Amanpreet. Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Deutschland. Ich spreche vier Sprachen. Spreche. Vier Sprachen. Englisch, Hindi, Punjabi und just a moment. Und nur ein bisschen Deutsch. Ich Beruf nicht setzt. Meine Hobbys sind Kochen und Lesen Musik. Musik hören. Kochen und Musik hören. Lesen बोल दिया. Music Hören. So, repeat it. How many languages do you speak? Repeat this sentence. Ich spreche Ich spreche. vier Sprachen. Sprachen. Yeah. Okay, good. Next. Harsh. Okay, where is the Shruti? Du bist. हाँ सर. Bitte schon. Ich heiße Shruti Aradia. Ich bin 33 alt. Jahre alt. Jahre alt. Ich auf सर भूल गई मैं. Ich wohne is living. Ich komme aus Indien. Ich wohne in München. Ich spreche Kannada, English, Kurdi und manche Deutsch. Ein bisschen Deutsch. या तो बोलो etwa Deutsch या ein bisschen Ein bisschen. Deutsch. Ich berufe ist Wissenschaftler als Spezialist für Einrichtungen. Wissenschaftlerin. Okay. Und im Freizeit. In der Freizeit. In der Freizeit ich Hobbys ist Musik hören, Gemälde, Fotografie
und kochen. मोमेंट, या तो बोलो कि इश माखे गैर ने, या तो फ्री टाइम वाले को मिक्स मत करो हॉबी फ्राइड साइड, या तो बोलो सिंपल इश माखे गैर ने योगा, या फिर क्या था, हॉबी क्या है तुम्हारी, रिपीट। Yoga, Photography. Ich mache gerne Yoga und fotografiere. Fotografiere. Ist painting को Ma- gemälde बोलते हैं. Ich mache Yoga und Foto machen भी होता है। Ich mache Yoga und Fotos. Malen. Ja? Oder und ich male हाँ mal. Okay, okay. auch gerne. Ich mache gerne Yoga, Photos. Fotos und ich male auch gerne. I also do painting. Okay. Ja? या Sir, फिर 1 second, I'll write it down, sir. या श्योर, इन देयर फ्राइड साइट mache ich योगा, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फोटोज und ich male. सर ये माले के साथ ही इश्क क्यों लग रहा है, सिर्फ माले क्यों नहीं लग रहा? माले भी चलेगा, und माले जरूरत नहीं है इसकी, सब्जेक्ट सेम है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन देयर फ्राइड साइट mache ich योगा, फोटोज und male auch, ये भी सेंसफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर हॉबी वर्ड यूज करना है तो meine Hobbys sind malen, इनको सबको कैपिटल लिख दो, malen, फोटोग्राफियरन, और ये अच्छी बात है, फोटोग्राफियरन। और सर अब जैसे हम यहाँ पे ये सब लगा रहे हैं, इनके आगे हम आर्टिकल नहीं लगा रहे ना, योगा, फोटोज या माले। ना, इनके आगे नहीं लगा रहे। सो इसमें जो भी वर्ब है उसको कैपिटल लिख दिया आपने बस। meine Hobbys sind malen, fotografieren und yoga machen। एक ही बात है, कोई एक लेना है अपन को। ओके, नेक्स्ट। सर ये एटवा आएगा, एटवास आएगा, एक ही बात है, मैंने एटवास यूज। एक ही बात है। एटवास को ही शॉर्ट में एटवा बोल दिया, लिटरली है मतलब दोनों का, एटवा। वैसे सर एक क्लास समथिंग होता है, तो समथिंग डॉइच कैसे हो सकता है? सम डॉइच ना, सम। एटवा या Richtig. ich spreche etwa Deutsch। Wer ist jetzt dran? Hello? What sir? Next person? I think everyone only Leish is pending. Okay. Yeah, hello. Nilesh, British on? Yes, sir. Ich heiße Rupesh Kumar Chaudhary. Ich komme aus Rajasthan. Ich wohne in Jaipur. Meine Hobbys sind Musik, sind Fotografie und Yoga. Machen. Huh? Okay. Und welche Sprachen sprichst du? Which languages you speak? Sprachen. Welche Sprachen? Which languages do you speak? Ich spreche Hindi, Englisch und etwa Deutsch. Und ein bisschen Deutsch. Ein bisschen Deutsch generally that. Okay? Hier, also Informationen bitten und Informationen geben. Informationen bitten मतलब आप या तो इंफॉर्मेशन दे रहे हो या कोई ले रहे हो। या बेटा जैसे हम अभी A1 में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये बोलना सही होगा कि मैं कुछ डॉइच बोलता हूँ या मैं डॉच बोलता हूँ बोल सकते हैं, या वो सोचेंगे कि
कुछ डॉइज बोल रहा है तो इसको फेल कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उनको ऐसा इतने समझदार हैं, वो बोल रहे हैं तो वो सुन भी तो रहे हैं, अंधे बहरे थोड़ी है। उल्टा उनको लगेगा कि अच्छी वो कैब यूज कर रहे हैं, कि कुछ टॉयज बोल रहे हैं तो उनको लिटिल की वो कैब भी आती है। सही है, आइनविशन डॉइच, इनको लिटिल वर्ड भी आता है। वो तो आप बोलोगे तो पता चल ही जाएगा। आप ये भी कह सकते हो, अगर उसके टॉयज बोलेंगे तो वो सोचेंगे। एक ही बात है, आप कुछ भी बोलोगे वो तो वही सोचेंगे जो उनको, आप कुछ ही बोलो वो तो वही सोचेंगे जो उनको सोचना है। हेलो, बढ़िया, तो ठीक है। आपको आराम से बोलना है कूल und ich spreche ein bisschen Deutsch। कॉन्फिडेंस से उस ein bisschen Deutsch को भी बोलोगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ A1 का तो लेवल है इसका। अच्छा, हो गया, ठीक है। So Sir, it's looking blurred. blood, okay, now better। अभी हाँ sir. बेस्ट। So here tiles Y, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन ध्यान हो तो आपको, और इसमें आपको कुछ करना है, ये लास्ट है यहाँ पे। इसमें आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं, टॉपिक दिया होता है। जैसे इसमें टॉपिक दे रखा है einkaufen, Informationen bitten und Informationen geben। इंफॉर्मेशन कोई पूछ भी सकता है, दे भी सकता है, दोनों ही है, लेकिन आप दिमाग में ये रखो कि इस वाले में आपको क्वेश्चन पूछना है, तो क्वेश्चन पूछोगे तो इंफॉर्मेशन ले ही रहे हो। सो einkaufen दे दिया, एक बंदे के पास हो सकता है einkaufen आ जाए टॉपिक, दूसरे बंदे के पास हो सकता है Freizeit आ जाए, ये दो टॉपिक हैं, ठीक है, तो थेमा है ये अपने आप में। सो एक बंदा einkaufen, जैसे फॉर एग्जाम्पल मे बी विक्रम के लिए है टॉपिक einkaufen, विक्रम विल आस्क एंड एनी ऑफ अस मे बी रिप्लाई। Ich kaufe 1 kg Bananen, an So ask something। सर बोल दिया सर मैंने। रेश, Ich kaufe 1 kg Bananen, ein। आपको मैंने बोला कि क्वेश्चन पूछो, You have to ask. ओके। यू शुड आस्क। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरे को आई वुड लाइक टू हैव ए 1 किलो बनाना, हाउ मच डज इट कॉस्ट प्लीज, या ओके। किलो, केजी नहीं बोलना, किलो, किलोग्राम या किलो। Ein Moment, sir. ओके, Ich will 1 kg Bananen. Wie kostet das? वी फील कॉस्टेड 10 बिटे, वी फील या वस Wie क्वेश्चन जी, वी फील कॉस्टेड 10 किलो, wie viel kostet das? किलो, या वी फील 10 सर किलो। हो गया सर। Okay, somebody should answer। Es kostet 1 Euro. 1 Euro. Es kostet 1 Euro। Okay, 1 Euro। Möchtest du Kaffee? Eggs. Would you like to buy? ऐसे बोलेंगे ना सर? या देखो, बनानन बोलना है तो वी फील कॉस्टन, 1 किलो बनानन। किलो बोलना है तो वी फील कॉस्टेड 1 किलो, राइट, वी फील कॉस्टेड 1 किलो, या फिर वी फील कॉस्टन 1 किलो बनानन, 1 किलो बनानाज। सो एस कॉस्टेड
1 Euro, क्या या es kostet 1 Kilo Euro, 10 किलो, 10 किलो का मतलब ये पर किलो. नेक्स्ट फ्रागे बिटे. Ich will 1 kg बनाना करेक्ट है? या इस विल 1 किलो बोलना है, केजी नहीं बोलना. 1 किलो या फिर किलोग्राम, या तो किलो बोलो या किलोग्राम बोलो. ओके. नेक्स्ट noch eine Frage, one more question. Was best do coughed pure सर आपने वो ग्रॉसरी का कुछ बताया था ना, मिट Lebensmittel. तो ऐसे पूछ सकते हैं ना, was best do coughed pure Lebensmittel. काउफन और बिस्ट दोनों जरूरी हैं क्या? अगर काउफन लगाना है तो उसको एंड में ले जाएंगे, अदरवाइज एक लगाएंगे. तो नहीं, आपको 2 वर्ब की थोड़ी जरूरत है. काउफन आ गया तो बिस्ट तो इंक्लूडेड है उसमें ऑलरेडी. राइट. और डू से नहीं, जी से बोलना है. आप शॉप पे हो, दुकान पे हो, इज्जत दो अगले को. Was the Kaufen für Lebensmittel? Was für Lebensmittel kaufen Sie? ओके. Was für का मतलब होता है what kind of. अगर आप was für बोल देते हो, इसका मतलब है what kind of. Was für Lebensmittel, ये एक वर्ड हो गया. फिर kaufen Sie, was für Lebensmittel kaufen Sie, इसका मतलब what kind of grocery item you are purchasing. Größe, what is Größe, what is Kasse, you should know all these words. Größe big. ग्रोस मतलब है साइज. कासे, चीज. कासे का मतलब कैश काउंटर. राइट. वो चीज जो है वो के से होता है. आपको जैसे इससे पूछना हो तो कैश काउंटर कहाँ है भाई, तो कैसे बोलोगे? वो काशे. राइट. कैश काउंटर कहाँ है? वो इस्ट काशे. ओके, वो इस्ट दी काशे. नेक्स्ट. सर ये भी बोल सकते हैं क्या कि वो इस दी काशे रिश्तुम, या रिश्तुम. डायरेक्शन कहाँ है? डायरेक्शन क्या है यही पूछ लो. कासे है कहाँ, कासे की डायरेक्शन कहाँ है, कोई पूछता थोड़ी है कि in which direction is the cash counter. या जो वो ईस्ट दी काशे, वो जुक है जो ईस्ट जुक है काशे, ऐसे बोल सकते हो. आई एम सर्चिंग कैश काउंटर, पॉइंट ऑफ सेल. या इस जुक है काशे, वो ईस्ट बिटे काशे. नाउ द सेकेंड वन, मे बी श्रुति विल आस्क एंड यू विल रिप्लाई. Here Freizeit is das Thema. टॉपिक है आपका Freizeit. Wo machen Sie im Freizeit? Means Was machen Sie im Freizeit? in der Freizeit. Die Freizeit होता है इसलिए. In der Freizeit. Was machen Sie in der Freizeit? Okay. Was machen Sie in der Freizeit? जब कोई बोल रहे हैं ना was machen Sie in Freizeit, वो इनडायरेक्टली वही क्वेश्चन है कि आपकी हॉबी क्या है. वही है. Was machen Sie in der Freizeit? What you do in your free time? Ich koche in meiner Freizeit. In meiner Freizeit. Okay.
सर जैसे हमें डिफरेंट कुजीन वर्ड यूज करना हो तो हम कैसे यूज करेंगे? डिफरेंट कुजीन्स। और जो रेसेप्ट है ना, हाँ जी। रेसेप्ट है, स्प्रोबियर है, स्प्रोबियर है, और जो unterschiedlich है, unterschiedlich है मतलब डिफरेंट, स्प्रोबियर है का मतलब है आई ट्राई, स्प्रोबियर है, इश्कोक है, unterschiedlich है, कुजीन है। ओके, बड़ा मुश्किल वर्ड है डिफरेंट। हाँ थोड़ा मुश्किल है ना। ओके, नेक्स्ट anybody else? Kino or Was ist das Wochenende? was is das Wochenende मतलब वीकेंड। what? What are you doing this weekend? So doing तो Was haben das Wochenende? Wochenende. सर ये वार्डन का मतलब क्या हुआ? वार्डन वेर्डन का मतलब, वंडरन का मतलब तो है फ्री घूमना, नेचर घूमना। वंडर्स टू विश वंडर। Sir, wander is like wandering. यस, वंडरिंग। Was machen Sie das die Wochenende? आम वोखनेंडे, वोखनेंडे से पहले आम लगेगा। वस मार्क्स डू आम वोखनेंडे, डू से ही बोला करो। एग्जाम में वो एक्सपेक्ट करते हैं डू से। टीचर के साथ ही हो रहा हो तो भले ही जी बोलो, नहीं तो डू से बोलना है। वस मार्क्स डू आम वोखनेंडे, वस मार्क्स डू आम वोखनेंडे। सुनना पड़ेगा। ओके, गेहन भैया सिनेमा चलेंगे वीकेंड में, कैसे बोलेंगे? सिनेमा चलेंगे क्या वीकेंड में, या फिर सिनेमा जाते हो क्या देखने, क्या बोलोगे? Soll wir gehen to Kino zusammen? वोलन वियर, Wollen wir, okay. जोलन भी कह सकते हैं, जनरली बोलते हैं वोलन वियर मीन्स वी आर या वी वांट, डू वी वांट। जो वोलन वियर, Wollen wir zusammen zu Kino gehen? वोलन वियर ओके, सुजामन इंस किनो गेहन, इंस किनो बोला करो। सुम किनो भी गलत नहीं है, बट इंस किनो बोलते हैं जर्मन्स जनरली। गेहन भी लगा देंगे सर एंड में? हाँ, जरूरत नहीं है। बेटर है, लगा दो तो अच्छा है। मीनिंग तो अभी भी अंडरस्टूड है, बट लगाओ तो अच्छा है। वोलन वियर सुजामन am Wochenende ins Kino gehen। अब सर एक बात बताओ, इसमें ये जो वोकेनेंडे है वो काइंड ऑफ टाइम हो गया, तो हाँ। अगर हम इसको आगे लगा दें और उसके बाद सुजामन वगैरह लगा दें तो ठीक है, या कोई- ऐसे ही? कोई प्रॉब्लम नहीं है। A1 में टेका मोलो का ध्यान ना भी रखा जाए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोलन वियर सुजामन ins Kino gehen। या so das war it। Zusammen ins Kino. Ja. Can we go to cinema together? ऐसे भी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योनन वियर भी बोल सकते हैं, लेकिन वोलन में क्या है कि एंथुजियाज्म है, वोलन में एक्साइटमेंट है कि वी वांट, डू वी वांट, मतलब मैं तो चाहता हूं, तुम भी चाहते हो क्या? क्योनन वियर चलेगा, क्योनन भी पूछ सकते हो, गलत नहीं है। वोलन वियर इज मोर पावरफुल बिकॉज स्ट्रॉन्ग डिजायर एक्सप्रेस करता है वो।
wollen. Okay. या एंड लास्ट में आपको ऐसे कुछ फोटो दिखेंगी, आपको उन फोटोज पे रिएक्ट करना होता है. बिटे फॉर्मुली, बिटन का मतलब है रिक्वेस्ट, बिटन फॉर्मुलियरन उन दाराउफ रियागियरन. उसमें सेकंड वाले में जनरली हम क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें क्वेश्चन हो सकता है, बट बिटन का मतलब है रिक्वेस्ट, राइट. जनरली आप कुछ मांग रहे होते हो, या जैसे कांस्ट टू बिटे मिया डेन कूली गेबन रिक्वेस्ट, और सामने वाला बोलेगा हियर बिटे या वरुण नेस्ट गैन है. ऐसे बिटन का मतलब यहां पे रिक्वेस्ट है, आप कोई चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो. सो कांस टू बिटे, तो अब इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना. नॉर्मल स्टेटमेंट भी एक बोल सकते हो, जैसे इश विल. Sir, is it not like what you taught yesterday? Imperative? Yes, it's kind of, you can use imperative also here. Give me your माल. Imperative यूज कर सकते हो डायरेक्ट, बिल्कुल. और भी अच्छा आइडिया है. Ich will einen Brief schreiben, for example. Ich will einen Brief schreiben. I want to write a letter. Suppose आपने ये बोला और फिर kannst du bitte, kannst du mir einen Kuli geben? और फिर सामने वाला बोलेगा या gerne, या gerne, hier bitte, कोई सा भी एक, दोनों नहीं, hier bitte. और जैसे तुमने अभी बोला कि कल वाले तरीके से हम बोले, तो सीधे ही बोलो give me your bitte, give me your बिटे einen कूली. सीधा ही इंपेरेटिव से ही बोल दो, ये सबसे बढ़िया है. सीधा ही, क्योंकि आप रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हो. गिव मी योर बिटे einen कूली, सामने बोला बोलेगा हियर बिटे या गैन है या बिटे शोन. सर कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ था सर? हो जाएगा, आज हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो, है ना. ठीक है सर. हाँ, आज हो जाएगा. सो सर एक बात बताओ, यहाँ पे आपने कांस डू मेयर लगाया है नीचे, इधर मेयर क्यों लगाया? ये गेबन के कारण लगाया है. आपको एनवीडीए की कुछ वर्ब्स बताई थी ना, उसमें गेबन भी है पर्सन के लिए. कौन कौन सी वर्ब बताई थी? गेबन, शेंकन, यही तो थी उसमें. शिकन, शिकन, शेंकन, गेबन, जागन, श्राइबर. Given is also true. Given is also there, so that's why. Often. Yeah, kaufen, sicken, yes. ओके, गेबन है राइट. तो इससे रिलेटेड कोई एक बोलो. ब्लर हो गया सर. इससे रिलेटेड बोलो कुछ. फोटो से रिलेटेड कुछ भी बोलना है आपको, कुछ मांगना है, कुछ बताना है, और सामने वाला उस पर रिएक्ट करेगा. Give me a bitte tableten. या गिव मी अ टैबलेटन. सर आर्टिकल क्या होगा सर? tableten. टैबलेटन का तो दी टैबलेट होता है, आर्टिकल की जरूरत नहीं है यहाँ पे. टैबलेट दे दो. आईने बोलना है तो आईने टैबलेट है. गिव मी योर बिटे आईने टैबलेट है. Ich habe Kopfschmerzen. I have headache. है वो यूज कर लो. Ich habe, या इतना. कांस डू मेयर मिल्क प्योर टे गेबन. Ja, kannst du bitte mir Milch für Tee geben? Warum nicht? Gerne, bitte schon. Ich möchte ein Paracetamol Tablet. Hier bitte, gerne. Hast du Kopfschmerzen? Ja, leider. Okay, maybe Dipali, you say something. Someone else will react.
Möchte sie einen Telefonnummer? मीन्स möchtest du, आप ऐसे जनरली तो इसमें बेटर है गिवन वाला यूज कर लो तो अच्छा है। एक बार मोबाइल मिलेगा क्या, मेरे को बात करनी है ना, या फिर ich will Orangen kaufen, kannst du bitte mir geben, ja, wie viel kostet, also wie viel kosten die Orangen, das Kilo, ich brauche Handy। Möchten Sie eine Cola haben? Möchten Sie Cola haben? या जी से नहीं डू से बात करो ताकि दिमाग में फिट रहे, अपन को एग्जाम में भी डू ही बोलना है, फिक्स कर लो डू से ही बोलना है। क्लार? बैकग्राउंड में नॉइस है तो बंद ही रखो, बेटर है। या Sir, for the first picture, wo ist das Apotheke? वो इस दस Apotheke bitte, या इस जुक है Tabletten, वो इस दस Apotheke bitte, यस वो इस दी Apotheke bitte, या फिर इस जुक है Apotheke। तो इसके जवाब में क्या कह सकते हैं अपन? सीधे चले जाओ, Gehen Sie geradeaus, Gehen Sie geradeaus und dann Links. links. yes, Links bitte. ja, und da gehen Sie Apothek, da finden Sie Apothek, da befindet sich Apotheke। सो ऐसे मौका मिल जाए तो इस जुक है टॉयलेटन, फ्लाइट, या बेटा विक्रम? Da finden कैसे लिखते हैं सर? दा मतलब देयर, दा का मतलब है देयर, देयर यू विल फाइंड, दा फिंडिश डू, अच्छा, दा फिंडिश डू Apotheke, देयर यू विल फाइंड। एक बार तो सीधा ही भेज दो कोई कुछ भी पूछे ना तो बोलो बेटे Gehen Sie geradeaus und dann links। Apotheke ist da, da ist Apotheke, da findest du Apotheke। वो ist die Toilette bitte, bitte Gehen Sie geradeaus und dann links। रेस्ट भी हो सकता है, या da finden Sie Toiletten, ऐसे। okay, Klar? So here they'll ask us to frame questions and also answers, sir. देखो अपने दिमाग में ये क्लियर रखो तीनों में कि फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला उसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है, हर पॉइंट पे बोलना है एक सेंटेंस एटलीस्ट। सेकंड वाले में आपको क्वेश्चन पूछना है, वो बंदा रिएक्ट करेगा, हमेशा दो रहते हैं, आप पूछोगे तो सामने वाला रिएक्ट करेगा, दो चीज आपको पूछनी है और दो चीज वो पूछेगा। आप पूछोगे आपका टॉपिक अलग होगा, आपके हाथ में रहेगा ये पेपर, और वो जब पूछेगा तो उसके हाथ में रहेगा ये पेपर, वो पूछेगा, Okay, sir. आप आंसर करोगे। तो सेकंड वाले में एक पूछता है दो क्वेश्चन और दूसरा आंसर करता है, तो ऐसे दो बार आपको पूछना है, दो बार आंसर देना है। और थर्ड वाले में सर आंसर में यस ओके ऐसे बोलने से चल जाएगा या नहीं फिर चलेगा। सेंटेंस फॉर्म करना पड़ेगा? सेंटेंस फॉर्म करना चाहिए। ओके करने से तो फिर टीचर को ये समझ में आ जाएगा कि आपको आता नहीं है, ये भी तो समझ आ जाएगा क्योंकि इसका मकसद ही बुलवाना है। Sir, while framing answers, do we have to choose the same thing what they have given, right? फॉर We एग्जाम्पल have to choose the same thing what they have given. Like the person, no, the previous one. If the person asks me, what do you do in your free time? So I will have to choose one of these and answer. नो नो, Right? एक्चुअली उसने बोल दिया कि was marks to in their Freizeit,
तो आपके पास तो फ्रीडम है. What you do in your free time, so whatever you do you can say. Okay. या ऐसा नहीं है कि इसमें से ही करना हो, जरूरी नहीं है, इसमें से भी ले सकते हो. जैसे in der Freizeit gehe ich schwimmen oder telefoniere mit meinen Freunden बोल सकते हैं. ये भी संयोग से आ रहा है तो, और नहीं आ रहा तो तुम अपना बता दो कि what you actually do. एक्चुअली ये कार्ड देते हैं श्रुति जी, और कार्ड किसी को भी नहीं दिखता है. जो आपका कार्ड है वो सिर्फ आप ही को दिखता है. आप ही को दिखता है. Okay. वो कार्ड पिक्चर को देखता है. हाँ, ये तो आपके पास रहेगा, ये आपका है टॉपिक, क्योंकि इसमें से आप पूछ रहे हो, वो जवाब दे रहा है, या फिर वो पूछ रहा है तो ये आपको नहीं दिख रहा. राइट. Okay, sir. These are like playing cards. यस. प्लेइंग कार्ड एक पिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. Select. आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. Okay, okay. आइल्स दिए हुए हैं तो समझ आ जाएगा. हाँ. आइल्स में भी तो ऐसे ही कार्ड दे देते हैं. क्यों? राइट. तो ये चीजें, और इसमें आपको हर बार कुछ रिक्वेस्ट करनी होती है ना. इस जूक है, इस ब्राउक है, गिव मी योर बिट है, ऐसे, और सामने वाला रिएक्ट करेगा उस और पर. सर इसमें सारे बताने होते हैं या वो कुछ स्पेसिफिक इसमें भी देते हैं? Two. दो, कोई Any of two. एनी ऑफ टू, जो भी आपके पास है. कार्ड आएगा इसमें भी ना सर. इसमें भी ये वाला जो है, जैसे मान लो आपके पास दिख रहा है तो ये दोनों को दिखता है, ये वाला दोनों को दिखता है, क्योंकि उसने कुछ बोला तो आप रिएक्ट कर सकते हो ना. नहीं तो दिखेगा, दोनों को नहीं दिखेगा तो कैसे रिएक्ट करे. नहीं, ये एक कार्ड देंगे या एक साथ? पूरा एक ही करके एक ही पेपर पे होगा सारा ये फोटोज, और इसमें से कोई दो फोटो चूज करके आप बोल सकते हो. कभी कभी तो एक बोलने से भी चल जाता है काम. Sir, here, is it better to choose a single sentence to request, like you said, give me a bitte, like it is a permanent thing while asking, so that we can, we don't get confused Yeah. while giving the exam. Right. So we do the same thing while asking or Yeah. requesting. यस या इट्स बेटर. सपोज आपको दवाई लेनी है, सर दर्द है ना, तो आप ये बोल सकते हो, बेटे गिव मी अ टैबलेट है, इतना भी काफी है. लेकिन अगर आप इतना बोल देते हो कि ich habe Kopfschmerzen, बेटे गिव मी अ टैबलेट है, eine टैबलेट है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखेगा टीचर को कि यार इसने सोचा, डबल 2 सेंटेंस बनाए, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखेगा. Okay. है ना. हाँ सर, हाँ सर. ऐसे अदरवाइज सीधा ही कह सकते हो आप, गिव मी अ बेटे टैबलेट है, और आपने कहा सर दर्द है, टैबलेट चाहिए, तो Okay. So here in that watch thing, ich habe Uhr nicht. ich habe keine Uhr. Ich habe keine Uhr. Okay, keine Uhr. Okay. Wie spät ist es bitte? What's the time please? What's the time like? Kannst Okay, sir. ja, ऐसे करके. ich habe keine Uhr भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं. या फिर ich habe einen Termin, मेरा एक अपॉइंटमेंट है. Wie spät ist es bitte? तो जो भी आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, बिना टेंशन के बोलना है. सबसे मेन चीज ये है कि आपको, जैसे कोई भी जो आपको सुटेबल लग रहा है ना, जो इजी लग रहा है उस पर बोलना है. जबरदस्ती गले नहीं पड़ना है कॉम्प्लिकेटेड के, जो इजी लगे ना उस पर बोलना है. दैट्स इट. Okay, sir. Richtig. So, das war es. Und ich kann ja nur sagen, alles Gute